وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی پر زور اس موقع پر دیکھنے کو ملا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اس ملاقات میں ایسا کہا ہے۔ امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کو مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ کے پی حکومت صوبائی اداروں کو مضبوط کرے، امن کا قیام اور عوامی فلاح کے لیے کے پی حکومت آئینی ذمہ داری نبھائے۔ بات کریں گے عثمان خان، نمائندہ سما میں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا، اہم ملاقات رہی ہے، وفاقی وزراء بھی موجود تھے اس ملاقات میں، ذرا تفصیل سے احوال بتائیے۔ جی دیکھیے، خیبر پختونخوا اور وفاق میں جو تناؤ کی کیفیت تھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے ملاقات میں یہ تناؤ کی کیفیت ختم ہوئی ہے۔ جو برف ہے وہ پگھلی ہے اور اس میں جو صوبے کے مسائل اور وسائل تھے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں دہشت گردی کا معاملہ ہو یا جو بقایا جات کا معاملہ ہے اس کے اوپر کھل کر جو ہے وہ سارا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیا ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس ملاقات کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صوبے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین جو تعاون کی ضرورت ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے اور وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور اقتصادی دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھے گی اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام اور عوامی فلاح کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت با اختیار ہے، صحت اور تعلیم کے لیے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور کافی ساری وزیر اعظم کی جانب سے ہدایات جو ہے وہ صوبائی حکومت کو اور وزیر اعلیٰ کو دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قومی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی روابط اور مؤثر رابطہ کاری کو ناگزیر قرار دیا اور وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے وفاقی دائرہ کار کے تحت تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے اور یکساں ترقی کے ویژن پر عمل پیرا ہے اور باہمی مشاورت اور اشتراکی عمل کے ذریعے قومی یکجہتی، استحکام اور خوشحالی کے اہداف کو مؤثر انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ چونکہ پہلی ملاقات تھی وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے جس میں مسائل کے اوپر بات کی اور وزیر اعظم نے بھی فوری طور پر ایک ٹاسک دیا ہے وزیر پلاننگ احسن اقبال کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ فوری طور پر بیٹھیں صوبائی حکومت کے حکام کے ساتھ اور ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر نہ صرف صوبائی حکومت کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ ایک بہت اہم ملاقات آج ہوئی ہے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون اور بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماں اور بیٹی کے سروں پر زخم کے نشانات پائے گئے ہیں۔ جہانگیر خان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جہانگیر، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جب وقوع کے اگلے ہی روز ماں بیٹی کا پوسٹ مارٹم نیو ہسپتال میں کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے اور اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں ماں بیٹی کی جو موت ہے وہ سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کاز آف ڈیتھ جو ڈکلیئر کی گئی ہے پوسٹ مارٹم میں وہ سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹنا بتایا گیا۔ خاتون سعدیہ کے دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ 9 ماہ کی یا 10 ماہ کی جو بچی ہے رضا فاطمہ اس کی گردن کی ہڈی پر کریک ہے۔ اس کے علاوہ جو خاتون سعدیہ ہے اس کے سر اور جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے نشانات بھی پائے گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو تفتیش کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنا دیا گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا جہانگیر۔ عالمی مقامی منڈی میں سونے کی قیمت میں تیسری بار سب سے بڑی کمی۔ فی تولہ سونا 21,500 روپے کم ہو کر 4,90,362 پر آ چکا ہے۔ 10 گرام سونے کے دام بھی 18,433 روپے کم ہو کر 4,20,406 روپے پر آ چکے ہیں۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 3 دن میں 82,500 روپے سستا ہوا ہے۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 602 روپے کم ہو کر 8,405 روپے پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پہلی باضابطہ ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وفود کی سطح پر بھی یہ ملاقات ہوئی جس میں وفاق اور صوبے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ بڑی اور اہم ملاقات جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کی پہلی باضابطہ ملاقات ہے یہ۔ شہباز شریف اور سہیل آفریدی کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ محسن نقوی اور مزمل اسلم اس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے دعوت دی، ان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مسائل پر بات ہوئی ہے۔
26 अरब साबिक फाटा पर लगा चुके हैं। वजीर आला केपी की जानिब से कहा गया, वजीर आजम ने कहा कि मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे, अभी मजीद इजलास होंगे, फैसले होंगे तो सामने आ जाएंगे। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये भी कहा गया, दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। सुहेल आफरीदी की जानिब से ऐसा कहा गया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है जिसमें ये कहना है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। सुहेल आफरीदी ये कह रहे थे अभी मज़ीद इजलास होंगे, फैसले होंगे तो सामने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे। 26 अरब साबिका फाटा पर लगाए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तफसीलन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का ये बताना था। वज़ीर आज़म ने दावत दी, उनसे मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और मुज़म्मिल असलम भी शरीक हुए। वफूद की सतह पर भी अहम मुलाकात हुई, अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी की 1-on-1 मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है और अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी की 1-on-1 मुलाकात हुई है। बहुत सारे अहम मसले जो कि केपी गवर्नमेंट फेस कर रही थी वो यकीनन इसमें डिस्कस किए गए होंगे। वफूद की सतह पर ये मुलाकात हुई है और आपको बताएं कि इसमें मोहसिन नकवी और मुज़म्मिल असलम भी शरीक हुए हैं। अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई है। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वज़ीर आला केपी बार हाँ कर चुके हैं, यकीनन उस पर गुफ्तगू हुई होगी। वज़ीर आज़म ने दावत दी, उनसे मुलाकात हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ऐसा कहना है और ये बात हमेशा से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर PTI और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए तो एक टेबल डिस्कशन होनी चाहिए। वो डिस्कशन आज हम देख भी रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात हुई है। वज़ीर आला केपी की जानिब से ऐसा कहा गया है। 26 अरब साबिक फाटा पर लगा चुके हैं। वज़ीर आला केपी की जानिब से ऐसा कहा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे, अभी मज़ीद इजलास होंगे, यानी मज़ीद मुलाकात की जो इजहार है वो वज़ीर आला केपी की जानिब से किया गया है। तो यहाँ मुलाकात है, इस मुलाकात से मुतालिक जैसे जैसे डिटेल सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और अहम खबर कि बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन के दौरान 22 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है 3 रोज़ के दौरान हलाक दहशत गर्दों की तादाद बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ती हुई 177 हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है। तो बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रात भी ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 22 दहशत गर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है। और गुज़िश्ता 3 रोज़ की अगर बात की जाए तो 3 रोज़ के दौरान हलाक दहशत गर्दों की तादाद 177 हो गई है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, मुसलसल दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, दहशत गर्दों की तादाद बढ़ रही है 170। और इससे पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है जिसमें वफाक और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर ख़जाना केपी मुज़म्मिल असलम भी शरीक थे। तो मौजूदा हालात में ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, 2 बड़ों की अहम बैठक, बड़ी अहम मुलाकात, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम पेशरफ्त है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वज़ीर आज़म की दावत पर वज़ीर आज़म हाउस आए और उनके साथ मुशीर मालियाती अमूर मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे और ये अहम मुलाकात हुई है। जिसके बाद 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब वज़ीर आला वापस, उनकी मीडिया टॉक भी हुई और जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला ने जो टॉक की उसमें कहा कि जाते ही उन्होंने बलूचिस्तान का जो वाक़या हुआ उसके ऊपर मज़म्मत की है और साथ ही साथ ये भी बताया कि सूबे के मसाइल के ऊपर खुलकर बात की गई है। जो मसाइल का मामला है और जो मसाइल दरपेश हैं सूबे की हुकूमत को, उस हवाले से तमाम तर मामला जो है वज़ीर आज़म के सामने रखे और वज़ीर आज़म की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर हिदायत की है। वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल और जो मुतलका इदारे हैं उनको बुलाया गया और उनको ये हिदायत की गई है कि वो सूबाई हुकूमत के हुकाम के साथ बैठे और इनके जो माली मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए जो है वो पेशरफ्त की जाए। तो
वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि हर मामले के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और बड़ा क्लैरिटी के साथ हुकूमत के सामने जो है बात रखी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का ना कोई मज़हब है, ना मुल्क और ना ही कोई सूबा है और तहरीक इंसाफ और वो खुद दहशतगर्दी जहाँ पे भी होगी उसकी खुलकर मजम्मत करेंगे। सियासी सवाल जब उनसे किया गया तो उनका कहना था कि इमरान खान से मुतालिक किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है और तमाम चीज़ें जो है वो हुकूमत के सामने रखी हैं। उनका ये कहना था कि तमाम लोगों को जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनकी कुर्बानियों का एहसास होना चाहिए और आज की जो मुलाकात थी वो वज़ारत आला के ओहदे का तकाज़ा था और इसलिए मुनासिब समझा कि सूबे और अवाम के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। तो आज की जो मुलाकात थी वो खालिस्तन सूबाई मामलात के ऊपर ये मुलाकात हुई है और उसमें बातचीत हुई है। किसी किस्म की कोई सियासी सवाल, बातचीत, तहफ़्फ़ुज़ात का ना इजहार किया गया और ना ही किसी किस्म का कोई जवाब मांगा गया। तो ना ही मुलाकात के हवाले से कोई बात की। बहुत सारे सवाल वसाइल और मसाइल जो केपी गवर्नमेंट फेस कर रही है उसको उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस अहम और बड़ी मुलाकात में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाबता मुलाकात हुई और जो गुफ्तगू हुई उसके बाद वज़ीर आला केपी ने जो बात की, जो मीडिया से टॉक की, वो आपको ज़रा सुनवा देते हैं। बात हुई है सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबाइली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ये है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से। जवाब नहीं, सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट है इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो वो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है
अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब, मुल्क या सूबा नहीं होता, किसी सियासी मामले पर वज़ीर आज़म से कोई बात नहीं हुई है।